नया मुरादाबाद स्थित नियो डेल्स मॉन्टेसरी स्कूल में बुधवार को एक दिवसीय इंटर हाउस न्यूज चैनल एंकर प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकुर गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में संचार कौशल, आत्मविश्वास और मंच संचालन की क्षमता को विकसित करना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के विभिन्न हाउसों से छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता ने स्वयं द्वारा निर्मित काल्पनिक न्यूज चैनलों के नामों से अपनी प्रस्तुतियां दी और समाचार एंकर की भूमिका निभाते हुए समाचार वाचन, रिपोर्टिंग एवं इंटरव्यू के माध्यम से अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। बच्चों ने न केवल देश विदेश की ताज़ा खबरों की प्रस्तुति दी, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि एक न्यूज एंकर समाज के किस प्रकार निष्पक्ष और सटीक जानकारी देने की जिम्मेदारी निभाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, महिला सुरक्षा और तकनीकी प्रगति जैसे विषयों पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को प्रभावित किया और कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों से खूब सराहना प्राप्त की। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका मैडम आरोही और एकेडमिक डायरेक्टर निखिल गुप्ता ने निभाई। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के आत्मविश्वास, वाक शैली और प्रस्तुति शैली की सराहना की तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। You're watching New Days News Network and I am Nantika Garg with today's top story. The toxic cough syrup tragedy that has shocked the nation. Recently, several children in Madhya Pradesh died after consuming a cough syrup named Coldriff, made by Citizen Pharmaceuticals in Tamil Nadu. Tests revealed that the syrup contained diethylene glycol, a dangerous chemical used in antifreeze. It's extremely poisonous and can cause kidney failure, brain damage or death. Following these deaths, the World Health Organization issued a global alert confirming that 3 syrups named Coldriff, Respifestir and Relive were contaminated. Heard it right. Rahul directed a short film called The Paper Team, which tells the beautiful story of a poor boy who builds airplanes out of paper but dreams of flying one day. The film touched everyone's heart. The audience cried, clapped and even gave him a standing ovation. Rahul started making videos on his small phone during the lockdown, and today his creativity has taken him to the world stage. He said, "You don't need big cameras to tell big stories, just a big heart and a dream." The judges praised his storytelling, saying it carried a strong message about hope and imagination. His film will now be shown in schools and film festivals across the world to inspire young minds. His proud parents said, "Rahul has proved that age doesn't matter when passion burns bright." Seatbelt and loosen a smile because the news you're about to hear might not change the world, but it will definitely change your mood. So let's move on to the first news, gold prices. Gold prices have crossed rupees 1,24,000 per 10 gram. Ladies can't sleep and husbands are tense, not because of love but because of gold. Soon the only gold people can afford will be Amul Gold, Priya Gold and Marigold. So the next news is about pumpkin. You must be thinking why I am talking about pumpkin. A farmer from California grew a record-breaking pumpkin weighing 2,346 pounds. Now all children are scared. They think their mother will cook pumpkin every day. So the last news of this episode will be Don't Tell Me Rules. Everyone, you are watching School Network News, where news comes with a pinch of joy and a spoonful of laughter. I am Aradhya Bhatia, your news anchor from class 5C, and bringing you to today's top headlines. Big buzz in the business world. Trump made high tariffs around the world. 100% on China, 50% on India, 25% on Canada and Mexico. This means that prices are shooting up more faster than my maths marks during an open book test. Gold and silver have become so costly that now most of us can only afford golden syrup of pancakes. So yes, we are still rich, but just in snacks. On the greener side, Indian cities are now building roads made with recycled plastic waste. They are stronger, last longer and help reduce plastic pollution. Did you know that a new form of solar energy is changing the way you think about solar panels?
प्रधानाचार्य अंकुर गुप्ता ने कहा कि विद्यालय में समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित हो जाती है, जिससे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभाओं को मंच मिलता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में स्पीकिंग स्किल्स और मंच पर अभिव्यक्ति की क्षमता को निखारते हैं। अंत में उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता ने न केवल छात्रों में पत्रकारिता के प्रति रुचि जगाई, बल्कि उन्होंने यह भी समझाया कि एक एंकर समाज में जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। विद्यालय प्रबंधन ने घोषणा की कि भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि बच्चों की प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता रहे। काशिफ, ये न्यू डेल्स मॉन्टेसरी में एक कंपटीशन, आज यूनिक कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम हमने क्लास 5 के बच्चों के लिए रखा है। कंपटीशन का नाम है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कंपटीशन। आप देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल्स, ऑल टाइम फेवरेट सबके, हिंदी इंग्लिश न्यूज़। और जो बच्चों ने एक कल क्वालिफाइंग राउंड था, आज भी क्वालिफाइंग राउंड है, अब शॉर्टली फाइनल राउंड होगा। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने न्यूज़ पढ़ी, बोली, द वे यू सी ऑन ऑल द चैनल्स। तुम भी एक रिपोर्टर हो काशिफ, तो मेरे को तो लगता है कहीं तुम्हारा थ्रेट ना हो जाए। जिस तरह से आज बच्चे ने बोला और आज तुम आए हो, अगर तुम इनको और इंस्पायर करो तो आई एम श्योर वन ऑफ देम कैन बी अ वेरी गुड रिपोर्टर। सर, क्या ज़रूरत महसूस की आपने कार्यक्रम? विद द चेंजिंग सिनेरियो, हर चीज़ चेंज हो रही है। पढ़ाई के अलावा हर चीज़ें, हर पहलू, इतनी ओपनिंग्स हो गई हैं आजकल, प्रोफेशंस इतने आ गए हैं। दिस इज़ ऑल्सो, जर्नलिज्म भी एक बहुत सॉट आफ्टर प्रोफेशन है। तो हमें लगा क्यों ना हम बच्चों को इस एज में उनको एक एक्सपोजर दें, और मेरी उम्मीद के मच बियॉन्ड दे हैव परफॉर्म्ड। आज तुम देखोगे भी, देखना जो फाइनल, जो क्वालिफाइंग राउंड है 4 हाउसेस का, 6 फ्रॉम ईच हाउस, 24 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह से वो न्यूज़ पढ़ते हैं, आई एम श्योर तुम पूरे टाइम तुम बीच में छोड़ के नहीं जा पाओगे। इट इज सो इंटरेस्टिंग। हो सकता है तुम इन बच्चों से कुछ सीख लो।